My voice is audible? Hello? Voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So, what about last lecture? What we are doing in last lecture? Last lecture we have studied few problems based on KVL and KCL. Based on KVL and KCL, we have studied some problems. In last lecture, we have studied some problems on KVL and KCL. And that problems are based on DC circuits. Now slowly we have to start for AC circuits also. Generally, these DC circuits problems are taught in first year. So concept will not change, only the solution will change. Means we have to follow the same KVL procedure, same KCL procedure, but you have to apply for AC circuits. Initially, we are studied only for DC circuits, right? So let's see how it is applied on AC circuit. Suppose this is an AC voltage source. Say inductor, resistance. Right? It's a simple circuit. We have three elements in the circuit: inductor, capacitor, resistance. So inductor and capacitor will not come in picture as far as AC circuits are concerned. We'll discuss later on why they are not coming in picture. But you remember that inductor and capacitor will not come in picture for DC circuits. But in AC circuits, in circuit of inductor and capacitor are given, then we have to solve for inductor and capacitor. Okay. Right? So in 12th also, you might have studied about AC circuits, inductor and capacitor. You are familiar with inductor and capacitor. Inductor and capacitor is not new thing. You know? So the effect of inductor is on circuit is inductor is replaced by its reactance. That is, we call it as a inductive reactance. As XL, inductive reactance. We call it as a inductive reactance. And I hope so you already have studied XL is inductive reactance and XL is equal to omega L. XL is equal to omega L. And similarly, capacitive reactance. XC is equal to 1 upon omega C. XC is equal to 1 upon omega C. So the effect of just like resistance in the circuit, but because of inductor and capacitor, we have capacitive inductance and capacitive reactance in the circuit. Or I mean to say, here I can write XL and R. If the capacitor is there, then I can write it as XC. Then I can write it as a XC in the circuit. Right? You're getting the point now? All of you? इंडक्टर का इफेक्ट क्या होता है XL एंड कैपेसिटर का इफेक्ट क्या होता है XC. ठीक है? The second point is inductor is an imaginary part and it creates a phase difference of exactly 90 degrees. Inductor generates a phase difference of 90 degrees. 90 degree का phase shift create करता है. इसलिए हम इंडक्टर को हमेशा we will replace इंडक्टर as a JXL. We'll replace inductor as a JXL and capacitor as a minus JXC. Capacitor as a minus JXC. ये concept आपको समझना पड़ेगा. I hope so. कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा या कहीं पढ़ा होगा, but you have to remember that
inductor is replaced by inductive reactance, and inductive reactance always create a phase difference of 90 degree. So we can write this as a JXL and capacitor as a minus JC. Now what is J? What is J in electrical engineering? I hope so you are seeing this term first time. So J is nothing but it is a I. I and J both are same things. In complex algebra, whatever you are using I, it's an imaginary number, say under root of -1. Under root of -1 is I. Same terminology, same concept, same J, same I. In electrical engineering, we are using a sign convention as J. We can use I also, but instead of using I in engineering, in electrical engineering, what sign convention is used all over world is J. Rather than using I, we are using J. So there is no need to distinguish between what is I and J. J is same thing. In calculator, you have I. अगर आप complex number use करते हैं, if you are using a complex, if you use calculator in complex mode, you will find that there is a I term is there in complex number. So you can use I, but in paper, in copy, you have to write it as a J. Okay? So slowly we have to move towards AC circuits, or आपको whatever work is given to you, you finish it on the same day as possible. Otherwise, things will come once again. एक चीजें आते जाएगी और क्या हो जाएगा, आपकी पुरानी चीजें लैक होते जाएगी. तो बी रेगुलर इन क्लास. अब क्लास अटेंड करो. क्लास में अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो वीडियो देखो केयरफुली एंड उस टास्क को कंप्लीट करते जाओ. अगर कोई टास्क छूट गया आपका, मीन्स छूट गया समझो, बाद में होगा नहीं. ठीक है, तो स्लोली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. एवरी डे आई एम गिविंग अ न्यू कंसेप्ट एंड एवरी डे वन न्यू कंसेप्ट इज कमिंग टू यू. यू हैव टू लर्न लॉट. ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है, आपने कैलकुलेटर में आई डोंट नो यूज किया है कि नहीं किया है. कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर हो जाता है. यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यूज करना. ठीक है, तो इन सर्किट जनरली इंडक्टर वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ J एंड कैपेसिटर वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ -J. तो आपको सर्किट प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा. इन कॉम्प्लेक्स नंबर, वन थिंग यू रिमेंबर दैट कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू फॉर्म्स. एक फॉर्म होता है आपका x प्लस JY एंड एक अदर फॉर्म होता है R थीटा. इन कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू फॉर्म्स. वन फॉर्म इज x प्लस IY एंड सेकेंड फॉर्म इज R थीटा. So both are same things. It is represented in rectangular coordinate system and this is represented in polar coordinate system. This also you have already studied in mathematics, the polar coordinates. तो इसलिए mathematics is important. अगर आपको ये conversion आता है x plus jy to r theta और r theta to x plus jy, तो it's well and good. So try to solve these problems. आप calculator में use करो और कोई भी नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है वो सीखो आप लोग सब लोग. दिस इज अ टास्क फॉर यू टुडे. यू हैव टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वर्कआउट करना है कि कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे करते, हाउ टू ऐड रेक्टेंगुलर नंबर, हाउ टू ऐड सबट्रैक्ट रेक्टेंगुलर नंबर, पोलर फॉर्म में ऐड सबट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे कन्वर्शन करना है, वाइस वर्सा. दिस यू हैव टू. Once you get a command, then if you solve a circuit problems आप solve करोगे तो आपको कोई problem नहीं है. And you don't have any problem. I hope so. Voice is visible and board आपको clear दिख रहा है. Board is clearly visible. हाँ सर. Yes sir. नेक्स्ट है कि अब स्लोली हम बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको ये करना आता है ना, जैसे 3 प्लस J4. तो अगर इसको मैं पोलर फॉर्म में करूंगा तो 5 मैग्नीट्यूड 53.6 एंगल ऐसा है. ये आपको करना आना चाहिए. 3 प्लस J4.
3 plus J4 is equivalent to 5 एंगल 53 या 56 जो भी होता है एंगल आप देख लो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, ये आपका एक रेगुलर मैथमेटिक्स है और कैलकुलेटर में आप रेक्टेंगुलर टू पोलर डायरेक्टली कर सकते हो। तो आफ्टर क्लास ये आप थोड़ा चेकआउट करना हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, या आपस में आप डिस्कस करो। इफ यू हैव अ डाउट तो हम और भी बात कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में फोन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें हम सर एक बार बताओ ना वो वाला नीचे का, क्या एक बार बताओ ना फिर से, ये अभी 3 + J4 वाला। 3 plus J4, हाउ 3 plus J4 इज कन्वर्टेड टू 5 एंगल, ये हाँ 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 वही वही एक बार। ये आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में। हाँ पढ़ा है सर, पर वो ऐसा नहीं था ना, वो नीचे का समझा नहीं, मतलब वो R53 वाला। अरे 3 plus J4 तो कैसे होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। हाँ समझा सर, समझा समझा। ठीक है, बट आपको ऐसे सॉल्व नहीं, हाँ हाँ लिसन लिसन, बट आपको ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपका कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा, योर कैलकुलेटर विल गिव यू डायरेक्ट आंसर। आप 3 और 4 को डालो, शिफ्ट रेक्टेंगुलर टू पोलर प्रेस करो, पोलर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू ऑपरेट योर कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड। ये काम आपको डायरेक्टली, आपको वहां पे आई भी मिलेगा। आप थोड़ा सा ना ये लेक्चर के बाद ना वर्कआउट करो कैलकुलेटर में, जस्ट गो ऑन कॉम्प्लेक्स मोड। आप कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ, 3 + 4i टाइप करो, फिर इक्वल करो, फिर शिफ्ट करो, फिर प्लस की बटन दबाओ, वहां पे रेक्टेंगुलर टू पोलर हो जाएगा, फिर आपको पोलर की वैल्यू मिल जाएगी। स्लोली आप ये कन्वर्ट करना सीखोगे, आप इस पे वर्कआउट करो थोड़ा सा। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब लोग सीखो कि कैसे ऑपरेट करता है। अगर वो आपको ऑपरेट करना आएगा तो हम सर्किट में अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई डायरेक्टली ऑन द सर्किट। सर्किट में हमें अप्लाई करना है, क्योंकि आपके जितने भी थ्योरम्स के प्रॉब्लम है, सर्किट एनालिसिस के प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन एसी सर्किट्स। तो आपको एसी सर्किट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाओ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ना, कर सकते ना, आप लोग ने ये पढ़ा है। ठीक है, ये हाँ हाँ और कैलकुलेटर विल गिव यू डायरेक्ट आंसर, राइट? ओके, shall I proceed further? Suppose ये basic question है, suppose this is 200 volt, this value is J10 and resistance value is 20. ठीक है, तो इंडक्टर की वैल्यू रिएक्टेंस जो आएगी J10 में आएगी। अगर हेनरी में दिया रहेगा तो फिर आपको ओमेगा एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके 2πfl से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज दिस J? J इज नथिंग बट I। जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वहां पे I पढ़ा है, वो I ही J है। ठीक है, हम I की जगह J यूज कर रहे हैं। इवन आपके कैलकुलेटर में भी I दिखेगा, तो डरो मत, आप I से सॉल्व करो, बट आंसर लिखोगे हम कॉपी में J। तो अब सपोज इसमें आपको करंट फाइंड करना, suppose you want to find current in the circuit, what will be the current in the circuit? ये हो जाएगा 200 volt rise plus J10I minus 20I is equal to 0। जैसे डीसी सर्किट चलता है वैसे ही चल रहा है। ठीक है, केवीएल अप्लाई कर दिया हमने, 200 rise minus J10I minus 20I। तो J क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये याद रखना। ठीक है ना, J से कंफ्यूज नहीं होना। इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये I को आप कॉमन लोगे तो फाइनली I क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20 प्लस J। ये आपको I मिलेगा। देखो आप नोटबुक में सॉल्व करके देखो, दिस इज कमिंग, एवरीबॉडी गेटिंग दिस? I इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20 प्लस J। अब आपको इसको कैलकुलेटर में डाल के फीड करके सॉल्व करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स मोड में जाए। अगर आपको कैलकुलेटर में आता है तो आप लोग देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स मोड में जाओ, 200 डिवाइडेड बाय, सीधा ब्रैकेट डालो, 220 प्लस 10I। J की जगह बस आपको I यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में आपने अगर 10I डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू कर दिया,
8 -4 है। आंसर क्या रहा है? 8 पूरा है। 8 -4 है। ठीक है, 8 - 4 आया लिखा है मैंने। सब लोग चेक करो आंसर में, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। तो यू हैव टू राइट जे, हाँ, डोंट राइट आई, मेक इट हैबिट ऑफ राइटिंग जे। जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई भी बुक में आपको जे मिलेगा। आप आगे चल के पावर सिस्टम पढ़ोगे, मेजरमेंट पढ़ोगे, एनी सब्जेक्ट, द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज जे। तो हम जे की हैबिट अब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 - 4j इज द आंसर। अगर आप इसको दूसरा आंसर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट करो और रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वो आपको मैग्नीट्यूड एंड एंगल भी मिल जाए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और एंगल की कोई कन्वर्ट करके बता सकता है तो बताओ कैलकुलेटर में, इफ एनीबॉडी नोस दिस। 8 और 4 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 64 + 16 60 70 √70 और कुछ सम एंगल आएगा, ठीक है। और वो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर टू पोलर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो योर आंसर इज दिस। आप रियल पार्ट में भी आंसर लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर में भी आंसर लिख सकते हो, और पोलर फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़े हम? आई होप सो। कैलकुलेटर सबके पास है, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये याद रखो। कैलकुलेटर आपको रखना पड़ेगा, और कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मोड पे वर्कआउट करो डेली, कॉम्प्लेक्स मोड में आपको वर्क करना पड़ेगा। दिस इज योर द रियल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम। हम एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस पे आ गए अभी हम, ठीक है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सिंपल सेम सर्किट ही रहेगा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका। नाउ इट इज एसी सर्किट। एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है। एंगल 0 दिया है। अब डी रॉय चौधरी वगैरह की बुक देखोगे, नेटवर्क्स की बुक देखोगे, एसी सर्किट की बुक्स, तो क्वेश्चंस में ऐसे रहता है। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 50 एंगल 0 है, उधर 100 एंगल 90 है, 90 डिग्री पे है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम है। इंडक्टर की वैल्यू क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है J10 एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है -J6। दिस सर्किट इज विजिबल टू एवरीबॉडी? सर्किट विजिबल है? क्लियर? यस सर। यस, सर्किट विजिबल है ना? हाँ हाँ, एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड। हाँ, देयर इज नो नीड टू वेट कि सबको आपको रिस्पॉन्ड करना है। सबको कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। अब सेम थिंग अप्लाइंग मेश मेथड, केवीएल मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सबको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, 2 इक्वेशंस लिखनी है। हाउ टू सॉल्व? राइट द इक्वेशन फॉर I1, राइट द इक्वेशन फॉर I2। I1 एंड I2 के लिए इक्वेशंस लिखो, ठीक है। यू हैव टू राइट इक्वेशन फॉर I1 एंड इक्वेशन फॉर I2। अगर आपको मेश मेथड से करंट्स निकालने बोला गया I1 एंड I2, तो आपको एसी सर्किट में भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। I1 एंड I2। तो लिखिए इक्वेशन, राइट डाउन द इक्वेशन। इक्वेशन लिखो। दिस वोल्टेज सोर्स इज 100 एंगल 90, ठीक है ना। तो ये पोलर फॉर्म में गिवन है, तो पोलर फॉर्म में गिवन है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 100 एंगल 90 को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 एंगल 90 का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होगा? आप कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 एंगल 90 लिखना आता है क्या कैलकुलेटर में?
नहीं। आपको कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा, पहले मोड में जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो ऑन मोड, मोड में जाके कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। एक बार CMPLX आपके स्क्रीन में अगर लिख के आ गया, अगर आपके स्क्रीन में CMPLX लिख के आ गया, मीन्स अब योर कैलकुलेटर इज इन कॉम्प्लेक्स मोड। CMPLX अगर आपकी स्क्रीन में लिख के आ रहा है तो आपका कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर चलेगा। अब वो वहां पे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे लिखना 3 + 4i, 3 + 4i, आई देखो ENG के ऊपर लिखा, तो ENG की बटन आप प्रेस करोगे तो 3 + 4i लिख के आ जाएगा। अगर आप ENG की बटन प्रेस करोगे ना तो i लिख लेंगे। अगर आपको 3 + 4i लिखना है तो 3 + 4 ENG की बटन प्रेस करना। ENG की जो बटन है दैट गिव्स यू i। इसकी आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको रेक्टेंगुलर टू पोलार करना है या पोलार टू रेक्टेंगुलर करना है तो आप कभी भी कर सकते। इस पे आप वर्कआउट करो आज कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ, इसके इक्वेशन को। तो 100 एंगल 90 इज नथिंग बट, अगर आप एंगल कोई भी 90, J इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगल 90 होता है। J इज इक्वल टू 1 एंगल 90 होता है पोलर फॉर्म में। अगर √J का मैग्नीट्यूड दोगे तो 1 आएगा, और एंगल क्या होता है 90 होता है। J 90 डिग्री क्रिएट कर, तो 100 एंगल 90 100i हो जाएगा या 100J हो जाएगा। 100J। हाँ 100J लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। अब मैं इसका, और 50 एंगल 0 इज 50, 50 एंगल 0 मीन्स 1, ठीक है। 0 50 एंगल 0 मीन्स 1 50। तो मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 50 राइज माइनस J10 × I1। आपने कल लिख चुके हैं ऑलरेडी ये इक्वेशन, अब इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 50 राइज माइनस J10 × I1 माइनस 15 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। I1 की टर्म उधर ले जा लो, 50 की इस तरफ ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 प्लस J10 I1। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, आप 2 स्टेप में लिखो, माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन 1 बनना चाहिए। इक्वेशन 1 बना के सबका ऐसा, जस्ट चेक यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन और नॉट। 15 प्लस J10 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 सबका बना के ऐसे? यस सर। बना सबका इक्वेशन ये? यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन? मैंने एक स्टेप स्किप किया, मैंने फर्स्ट स्टेप को आप सॉल्व करो और फिर ये इक्वेशन मिलेगा। 15 प्लस J10 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 50। आप अगर -1 से मल्टीप्लाई कर लोगे पूरा इक्वेशन में तो चेंज नहीं होता इक्वेशन, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है मैं यहां अगर माइनस लेता, यहां प्लस लेता, यहां माइनस लेता तो वो भी राइट है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस इक्वेशन? आई होप सो। अब सेकेंड इक्वेशन लिखो। सेकेंड इक्वेशन मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर लिखने की कोशिश करो। माइनस J6I2 माइनस J6I2 और ड्रॉप का माइनस, ये J6 का माइनस है और ये माइनस ड्रॉप का है, ठीक है। माइनस I2 इंटू J6 एंड ऊपर देखो, ऊपर देखो, माइनस ड्रॉप का है और माइनस J6 का भी है, तो 2 माइनस होगा, ठीक है। ये भी ड्रॉप हो रहा है, माइनस 190 लिख दो या 100J लिख दो, माइनस 100J एंड माइनस 15 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो I1 कितना हो रहा है, 15 I1
15I1 माइनस 15I2 प्लस J6I2 इक्वल टू 100 है। माइनस क्या हो रहा है 15 माइनस J6 इज इक्वल टू 100J हो रहा है क्या? देखो ऐसा आ रहा है क्या? जस्ट चेक करो सबको। इक्वेशन नंबर 2 जस्ट चेक करो, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही आ रहा है क्या? आ रहा है क्या ऐसे ही? हेलो 15I1 हाँ सर। वहां पे माइनस माइनस 15 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 15I2 हो जाएगा ना सर? नहीं देखो ये 15 माइनस J6 है, हाँ पर ऊपर में माइनस 15 इन ये माइनस ब्रैकेट। लिखा है। हाँ हाँ दो स्टेप में सॉल्व करो आप लोग, दो स्टेप में। मैंने एक स्टेप स्किप करी है। 15I1 देखो यहाँ पे माइनस 15I2 है, यहाँ पे माइनस 15I2 है, ठीक है। ये प्लस है लेकिन माइनस बाहर गया तो दो माइनस डाल के प्लस हो गया। इसके दो माइनस है, इसके भी दो माइनस है। मैंने जो लिखा वो बिल्कुल राइट है। इक्वेशन 1 and 2 मैच हो हाँ गए, सर बराबर है। जस्ट मैच इट, बराबर है। ठीक है, बराबर है सर। राइट। ब्लैक अच्छा बोर्ड का भी ये क्लियर आता है। दिस टू इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व इन इक्वेशन मोड, ठीक है। आप बोलोगे आप कैलकुलेटर में फीड करके सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होता इक्वेशन मोड में, तो ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्क बढ़ गया है। पहले क्या था आपके पास डीसी सर्किट से, तो आप कैलकुलेटर में इक्वेशन मोड में जाके सॉल्व कर रहे थे। अभी फॉर एसी सर्किट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। दिस इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म। राइट मैश इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका 15 प्लस J10, तो दूसरा इक्वेशन क्या है माइनस 15, यहाँ पे बीच में हमेशा I1 I2, और दूसरा इक्वेशन क्या है प्लस 15, और ये क्या है माइनस 15 माइनस J6। बहुत केयरफुली लिखना, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100J है, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिखना आ गया सबको? all of you got all of you understood how to write a equation in matrix form? मैंने दो इक्वेशंस को, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स से भी सॉल्व करते हैं, तो अब दो इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। देखो दिस 15 प्लस J10 माइनस 15 इज इक्वल टू 50, ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी। एंड दिस 15I1 माइनस 15 माइनस ऑफ 15 माइनस J6 I2 इज इक्वल टू 100। सबने लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन? सबने लिखा क्या मैट्रिक्स? हाँ सर। हाँ सर। एवरीबॉडी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपने यस सर। सबको समझ में भी आ रहा है? नाउ व्हाट यू डू, क्रैमर्स रूल अप्लाई करो, क्रैमर्स लॉ, क्रैमर्स रूल अप्लाई करो टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली सीखा है, दैट इज नॉट न्यू। क्रैमर्स रूल किसी ने पढ़ा है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से? तो आई पर ध्यान में नहीं है। यस हाँ सर। I1 इज इक्वल टू, ये नीचे पूरा डिटरमिनेंट जाएगा इसका। ये इक्वेशन फॉर्म में कैसा है, Zi इज इक्वल टू V के फॉर्म में, ये Z इक्वेशन का डिटरमिनेंट जाएगा नीचे पूरा, और ऊपर क्या जाएगा, जब आप I1 निकालोगे तो क्या होगा, इस I1 निकालोगे तो ये 50 और 100J से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, 50 100J को रिप्लेस करोगे, माइनस 50 माइनस 50 माइनस
नीचे वही रहेगा। इसको क्रैमर्स रूल से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप सो एवरीबडी नो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है। ये आपको I1 दी है। दिस इक्वेशन गिव्स यू I1 एंड I2 के लिए क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज होगा। न्यूमरेटर में 15 प्लस J10 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 50। ये दो इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा? I1 एंड I2 मिल जाएगा। You will get I1 and I2 by these two equations. ठीक है, यहाँ पे सेम डिटरमिनेंट रहेगा। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका I1 एंड I2 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप सो नई चीज नहीं है, क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा है। तो एसी सर्किट के क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, राइट? इन केस ऑफ एसी सर्किट्स जैसे आएगा आपका, तो एसी सर्किट में आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है। आई होप सो एवरीबडी नोज हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस आपने 12 से पढ़ा, 11 से पढ़ा। मैट्रिसेस इज नॉट न्यू थिंग। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मोड में आपका सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन है, आप ब्रैकेट यूज करो। ब्रैकेट्स आर देयर आर n नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द कैलकुलेटर में आप ब्रैकेट भी यूज करो। जैसे आपको लिखना है 15 माइनस J6, तो आप ब्रैकेट में लिखो इसे 15 माइनस J6 को, फिर ब्रैकेट में 15 प्लस J10 से मल्टीप्लाई करो। अनलेस एंड अनटिल आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आज। कॉम्प्लेक्स नंबर की बुक्स वगैरह निकालो, आप मैथ्स वगैरह की बुक वगैरह होगी अगर कहीं होगी। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना, अगर आपको आंसर आएगा तो फिर आपका आंसर, तो फाइनल आंसर आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, पोलर फॉर्म में भी हो सकता है। आंसर आपके I1 एंड I2 आ जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व एसी सर्किट सॉल्व करने का, यही मेथड है। ठीक है, तो इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा थ्रू आउट चैप्टर। जितने भी आपके एसी सर्किट्स निकलेंगे, यहाँ आप पढ़ोगे अभी डिफरेंट एसी सर्किट्स, पूरे थ्योरम्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको जे टर्म आएगा ही। हमको धीरे धीरे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स पे एसी सर्किट को सॉल्व करने की आपको हैबिट डालनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यू विल बी परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते ना, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस। इसमें कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, now it is open for all. If you have anybody having any confusion, you can ask the questions. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट के वो सब आप कैलकुलेटर में करो। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कैलकुलेटर वगैरह चलाने में कॉम्प्लेक्स मोड में, तो आप कॉलेज में अभी आके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको उस एंड में बता सकता हूं तो ऐसे फोन में बता दूंगा मैं। ठीक है, बट आप थोड़ा सा पहले ट्राई करो कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड वगैरह के, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो आंसर आपके पास है, फिर आप आगे बढ़ो एंड यू कैन कम कॉलेज ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आई एम ऑलवेज हियर इन कॉलेज, मैं आपको बता दूंगा। Anybody having any queries, questions? अगर किसी का कैलकुलेटर किसी को चलाना आता है तो अब तो क्या आंसर आ जाएगा फट से, क्विक यू विल गेट आंसर। ठीक है, अगर कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो मैंने आज ये क्वेश्चन इसीलिए कराया है कि आप आज पूरा टाइम कैलकुलेटर में डिवोट करो। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स, बुक में देखो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स होंगे, या ऑनलाइन देखो,
हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सिंपल जो डीसी सर्किट पूछा है वैसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, बट कॉम्प्लेक्स के आते हैं सिलेबस में। अदर सब्जेक्ट्स भी है, मशीन, पावर सिस्टम वगैरह में आप सर्किट एनालिसिस कहीं भी करंट वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे तो जे टर्म आएगा ही, आपको वहां भी करना ही पड़ेगा। पार्टिसिपेंट्स आर वेरी लेस, ओनली 20। स्मार्टफोन नहीं है क्या किसी के पास? स्मार्टफोन कम हो गए।